A very good morning to all my dear students. So we were discussing chapter 3 of business studies, and yesterday we have discussed the new economic policy, right? The new economic policy which was implemented in India in the year 1991. Before starting the class, let us recall the chapter up to this part. The first topic was meaning of business environment and environmental scanning. We have completed that business environment is an environment which includes all the factors, forces, individuals, and institutions which are beyond the control of business environment, but these all affect the performance of businessmen. Then we have discussed the meaning of environmental scanning. It simply means making complete understanding and awareness of business environment. Then we have discussed that this environment also provides us various opportunities, and along with that, it also provides us various threats. It means business environment provides opportunities as well as threats. Then we have discussed the 7 features of business environment. 7 features. Can anyone tell me the headings of 7 features? कौन से थे? Yes, all the Jagriti can tell us. Yes, Jagriti. Very good. Good morning, ma'am. Very good morning, beta. All external forces, specific and general forces, uncertainty, interrelation, relativity, dynamic, and complex. Very good. All the external forces, specific and general forces, सारे external forces आ जाएंगे जिनमें कुछ specific होंगे कुछ general होंगे. Then after we have discussed dynamic है, complex है और इसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल है इसलिए ये कॉम्प्लेक्स है. इसके अलावा इंटर रिलेशन है सारे फैक्टर्स में आपस में, और रिलेटिविटी भी है, यानी जहां जो फैक्टर है वहां से आपको पढ़ना पड़ेगा, प्लस अनसर्टेनिटी. देन वी हैव डिस्कस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. इम्पोर्टेंस के 6 पॉइंट्स हमने कर लिए थे, दैट वी कैन आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज. By identifying the threat, we can take it as a learning warning signal, and by identifying the opportunity, we can get the first mover advantage. Then we have discussed that it helps us in assembling and tapping the resources. Then by scanning the environment, we can adjust and adapt with the rapid changes, and it also helps the businessman in making plans, and all at last it helps the businessman in their improvement in performance. Then we have discussed the 5 dimensions of business environment: economical, social, legal, technological, and political. And in our last class, we have discussed about LPG, liberalization, privatization, and globalization. ये हमने last discuss किया था. Liberalization का मतलब हमने पढ़ा था being liberal, थोड़ा सा easy हो जाना जितनी भी policies है. Globalization का हमने meaning पढ़ा था integration of our economy with rest of the world, and privatization का meaning पढ़ा था private sector के role को increase करना. ये एक केस स्टडी हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आज पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ दीज पॉलिसी चेंजेस. हैव अ लुक एवरीवन. Zero defect, zero effect is a slogan coined by Prime Minister of India, Narendra Modi, with reference to Make in India initiative launched by the government. मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट आपको पता है इंडिया में लॉन्च किया गया है कि इंडिया में अगर प्रोडक्शन करोगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, राइट? तो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट का स्लोगन भी इन्होंने साथ में ही किया. This slogan reflects the efficiency of production process, that is, products have no defects and the process through which the product is made has zero adverse environmental and ecological effect. क्या कह रहे हैं ये कि स्लोगन का मीनिंग है जो प्रोडक्ट हमने बनाए, पहली बात तो उनमें डिफेक्ट नहीं है, दूसरी बात उनको बनाते हुए हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ध्यान रखा है, हमने अपने एनवायरमेंट को डैमेज नहीं पहुंचाया है. अब आगे देखिए, द जेड मॉडल यानी ये जो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट मॉडल है, aims to make India the manufacturing hub of the world and prevent the products developed in India from being rejected by the global market. इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़े, प्लस इंडियन गुड्स जो है वो ग्लोबल मार्केट में इजीली सेल आउट हो सके, ये इसका फोकस था. Moreover, before the initiative was launched, the limits of foreign direct investment on various sectors has been relaxed. फॉरेनर्स को इंडिया में इन्वेस्ट करने की लिमिट भी बढ़ा दी गई, रिलैक्सेशन दे दिया गया एफडीआई से रिलेटेड.
The application of licenses was made available online and validity of licenses was increased to 3 years. Various other norms and procedures were also relaxed by the government. अब ये आपको बोलना चाह रहे हैं, in the light of above paragraph, identify and explain the major components of new economic policy that are being referred to by quoting lines from above paragraph. एलिमेंट्स है कौन से? तीन ही एलिमेंट्स है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन. एलपीजी, आप बताइए आपको कहाँ कौन सा एलिमेंट नजर आ रहा है? कहीं आपको लिबरलाइजेशन से रिलेटेड बात नजर आ रही है तो हैंड रेज करके बताइए. लिबरल होना, इजी होना, रिलैक्सेशन देना, ऐसा कुछ भी यहाँ पे इन्होंने किया है क्या? देखिए जरा, लास्ट लाइन में भी ये यही बात कर रहे हैं आपसे, दैट वेरियस नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स वर आल्सो रिलैक्स्ड. प्लस यहाँ ये बात कर रहे हैं लाइसेंस का प्रोसीजर इजी कर दिया, रिलैक्सेशन दे दिया. जब भी रिलैक्सेशन देते हैं वी टॉक अबाउट लिबरलाइजेशन. अच्छा, इसके अलावा ये देखिए, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं और इंडिया के प्रोडक्ट्स का ग्लोबल रिजेक्शन रिड्यूस करना चाहते हैं. इट मींस ग्लोबलाइजेशन. बस प्राइवेटाइजेशन की कोई बात नहीं हुई है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का कुछ भी नहीं बताया. ऐसे केसेस ही आपको एग्जाम में मिलेंगे, ध्यान रखिएगा. ये हमारा जो आपके अभी प्री टर्म टेस्ट है उसके लिए इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, यानी उस प्री टर्म में आपका चैप्टर यहीं तक आने वाला है. इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस in economic policy of the business or on the business or effects of LPG. अब हमें ये पढ़ना है कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का इंडिया के बिजनेस एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा. जब हमने एलपीजी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया तो इंट्रोड्यूस करने से इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या फेस करना पड़ा, क्या क्या उनको बेनिफिट्स मिले या क्या उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी. तो चलिए पॉइंट नंबर फर्स्ट देखते हैं कि इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चेंज आया. नंबर 1 इज इंक्रीजिंग कंपटीशन. पॉइंट नंबर 1, इंक्रीजिंग कंपटीशन. हैव अ लुक. क्या हमें नाम से समझ आ रहा है कि जैसे ही एलपीजी पॉलिसी का इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया में कंपटीशन इंक्रीज हो गया. अब ऑब्वियस सी बात है, एलपीजी पॉलिसी से पहले क्या था? सिर्फ पब्लिक सेक्टर को परमिशन थी कि वो ज्यादा इंडस्ट्रीज इंडिया में सेटअप कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर को तो हम फ्रीडम ही नहीं दे रहे थे. और प्लस फॉरेन इन्वेस्टर्स तो हमारी कंट्री में आ ही नहीं सकते थे, फॉरेन एमएनसीज भी नहीं आ सकती थी. तो जब हमने एलपीजी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, इसके इंट्रोडक्शन के बाद बहुत सारी न्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस प्लस न्यू प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस हमारे यहाँ सेटअप हुई. और जब वो सेटअप हुई, नंबर ऑफ बिजनेस हाउसेस इंक्रीज हुए, जिसकी वजह से कंपटीशन भी इंक्रीज हो गया. तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हैव अ लुक. लिखना हमें ये एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं चाहिए बट कंटेंट यही चाहिए. After the new policy, Indian companies had to face all-round competition, which means competition from internal market and the competition from MNC. आप सबको पता है, इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर आपने प्रिपेयर किया है इंडियन इको का. यू ऑल नो इट वेरी वेल कि 1948 के बाद जब 56 में रिजोल्यूशन आया तो हमने क्या किया था, हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया और इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी फॉलो की थी. राइट. प्राइवेट सेक्टर को भी नहीं आने दिया था और फॉरेन सेक्टर को भी नहीं आने दिया था, इंपोर्ट्स नहीं करने दिए थे, जिसकी वजह से हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जो प्रोटेक्शन मिला था उनको फॉरेन कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ा था. राइट. ये चेंज हमने इस पॉलिसी को कब हटाया? इन द ईयर 1991. So after this policy, we had to face both the competitions, internal as well as international. आगे देखिए, the company which could adopt latest technology and which were having large number of resources could only survive and face competition. Many companies could not face the competition and had to leave the market. ऐसी companies जिनके पास अच्छे से resources available है और जो खुद को कंपटीशन में एडजस्ट करने के लिए चेंजेस कर सकती है, केवल वही सरवाइव कर पाई, बाकी कंपनीज सरवाइव नहीं कर पाई और बहुत सारी कंपनीज को मार्केट छोड़ के जाना पड़ा. कौन से ईयर में? आफ्टर द ईयर 1991. आगे देखिए, फॉर एग्जांपल, प्रायर टू 1991 बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन एक्सेट्रा was only with the public sector. सिर्फ पब्लिक सेक्टर के पास था, enjoying the monopoly, whereas no private banks, airlines and telecommunication companies had.
whereas now so many private banks, airlines and telecommunication companies have entered in the race of competition. कि पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर था, लेकिन अब क्या हो गया है, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस भी एंटर हो चुकी है इन फील्ड्स में. अब देखिए, फर्म्स के लिए कंपटीशन तो बढ़ा ही, साथ में जो कस्टमर्स थे उनकी डिमांड्स भी बढ़ गई. जब तक हमें लिमिटेड मिलता है तब तक हमारी लिमिटेड डिमांड होती है. जैसे जैसे हमारी एग्जिस्टिंग डिमांड्स फुलफिल होती है, न्यू डिमांड्स एमर्ज होने लग जाती है. तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है. इसमें लिखा हुआ है प्रायर टू 1991 प्रोड्यूसर मार्केट हुआ करता था, प्रोड्यूसर ओरिएंटेड मार्केट, जिसमें प्रोड्यूसर जो बनाएगा वही सेल हो जाएगा. आप जब अपने पेरेंट्स से बात करेंगे तो वो आपको बताते होंगे कि वो जब यंग एज में थे, वो जब आपकी एज में थे या आपसे थोड़े छोटे थे, उस टाइम उनको इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, इतने गुड्स नहीं मिलते थे मार्केट में, लिमिटेड चीजें मिलती थी और उन लिमिटेड चीजों को ही वो परचेज करते थे, राइट. तो देखिए क्या लिखा हुआ है. Prior to new economic policy, there were few industries or production units. As a result, there was shortage of production in every sector. हर सेक्टर में लिमिटेड वेराइटीज आया करती थी. Because of this shortage, the market was producer oriented. प्रोड्यूसर ओरिएंटेड यानी जो प्रोड्यूसर बनाएगा वही मार्केट में आराम से सेल आउट हो जाएगा. प्रोड्यूसर्स बिकेम द की पर्सन इन मार्केट. मार्केट के की पर्सन प्रोड्यूसर है, क्योंकि कंज्यूमर को तो आइडिया ही नहीं था कि अच्छा इससे अलग भी प्रोडक्ट आ सकते हैं क्या. पर आज के कंज्यूमर बहुत स्मार्ट है, आप लोग काफी स्मार्ट कंज्यूमर्स है, राइट. तो देखिए, but after the new economic policy, many more businessmen joined the production line, and where various foreign companies were also established their production units in India. उन्होंने भी establish किया. As a result, there was surplus of products in every sector. हर सेक्टर में प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा थे. The shift from shortage to surplus brought another shift in market, that is producer market to buyer market. जब मार्केट में बहुत सारे गुड्स अवेलेबल होंगे, ऐसे में कंज्यूमर्स के पास ऑप्शन होगा कि वो आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर सकता है अगर आपने उसकी नीड्स को फुलफिल नहीं किया. तो यही शिफ्ट मार्केट में आ गया. द मार्केट बिकेम कस्टमर ओरिएंटेड एंड मेनी न्यू स्कीम्स were made by the companies to attract the customer. Nowadays, products are produced and manufactured keeping in mind the demands and needs of customer. Anyone, any confusion in these 2 points? क्या कह रहे हैं ये? फर्स्ट पॉइंट में आपको बताना चाह रहे हैं कि जैसे ही हमने लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन एज वेल एज ग्लोबलाइजेशन किया, हमारा फॉरेन कंपटीशन इंक्रीज हो गया. इन्होंने बेसिकली प्राइवेटाइजेशन पे कम फोकस किया है, बट हमें तीनों का इम्पैक्ट बताना है ये, ठीक है. As soon as the LPG policy was introduced in India, the competition for Indian dealers increased because many new foreign companies entered the Indian industry. And along with increase in competition, the demands of customers also increased, and customer became the king of market. The market moved from producer oriented market to customer oriented market. Third point देखिए, rapidly changing technological environment. ऑब्वियस सी बात है, जब कस्टमर्स की डिमांड बढ़ रही है, मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी चेंज होगा. बिफोर 1991 फर्म्स वर फेसिंग ओनली इंटरनल कंपटीशन, तो जो सेम टेक्निक्स थी उन्हीं से काम हो रहा था. लेकिन इसके बाद जब हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, तो पूरे वर्ल्ड के अलग अलग कॉर्नर्स से अलग अलग इंडस्ट्रियल हाउसेस हमारे यहाँ आए, और अलग अलग इंडस्ट्रियलिस्ट जब आए, उन्होंने अपने प्लांट सेटअप किए, तो वो एडवांस टेक्नोलॉजी आई. इसकी वजह से इंडियन कंपनीज को भी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ी, और जो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा वो मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएगा. तो देखिए व्हाट इज रिटन ओवर हियर. Prior to the new economic policy, there was a limited internal competition only. हर point में same बात repeat हो रही है. But after this policy, world-class competition started, and to stand in this global competition, the companies need to adopt the world-class technology. And to adopt and implement this technology, investment in R&D department has to increase. R&D यहाँ पूरा लिखा हुआ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. MCQ में पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय R&D डिपार्टमेंट? रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए इस डिपार्टमेंट में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ सकता है. नेक्स्ट देखिए, नेसेसिटी फॉर चेंज. ये पॉइंट कह रहे हैं चेंज करना कंपल्सरी है. ऐसा नहीं है कि न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, आपके पास ऑप्शन है, आप चेंज करना चाहो तो कर लो, वरना पुराने प्रोडक्ट सेल करते रहो. नो. आप सोचिए, आज की डेट में अगर कोई सोचे कि हम तो कीपैड फोन ही सेल करते रहेंगे,
कीपैड के अलावा और कुछ करेंगे ही नहीं, तो क्या वो ज्यादा सर्वाइव कर पाएगा? डेफिनेटली नो। अगर कोई ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ही प्रोड्यूस करके सेल करना चाहे तो उसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये कह रहे हैं ये जो चेंजेस आ रहे हैं, इन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना कंपल्सरी हो गया था। बार बार बिजनेस एंटरप्राइजेस को अपनी पॉलिसीज को मॉडिफाई करना पड़ता था, और डायनेमिक एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए मैनेजमेंट को भी डायनेमिक बनाना पड़ता था। ये आपको पॉइंट 4 में कह रहे हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज। हैव अ लुक। Prior to 1991, business enterprises could follow stable policies for long period of time. But after this policy, they have to modify their policies and operations from time to time. 1991 के बाद वो rigid होके नहीं चल सकते थे, उनको flexibility को adopt करना जरूरी हो गया था उनके लिए। Anyone, any doubt? Doubts ही नहीं आते, हम आराम से बस easy going चलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। सारे पॉइंट्स इंटर रिलेटेड है। आप देखिए, अगर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट रैपिडली चेंज हो रहा है और उसको अडॉप्ट करना आपके लिए नेसेसिटी बन गया है, हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा ना, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, और फिर हमने पढ़ा नीड फॉर नेसेसिटी फॉर चेंज। तो जब ये दोनों चीजें कंपल्सरी हो गई है तो ऐसे में अल्टीमेटली आपको अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को भी डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क का पैटर्न चेंज होगा तो लोगों की स्किल्स भी अपडेट होने जरूरी है। तो वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रायर टू 1991 जो इनएडिक्वेटली ट्रेन्ड पर्सन थे, दे वर आल्सो एबल टू मैनेज द एंटरप्राइजेस, बट आफ्टर द पॉलिसी ऐसा नहीं हो सकता। लोगों के अंदर बहुत स्किल्स और ट्रेनिंग की जरूरत है। तो इंडियन कंपनीज को ये रियलाइज हुआ कि उनको अपने ह्यूमन रिसोर्स के स्किल्स को भी अपडेट करना नेसेसरी है, क्योंकि जब तक वो अपडेट नहीं करेगा तब तक उनके जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो उनको कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सरवाइव नहीं करवा पाएंगे। तो यहाँ तक पहले 5 पॉइंट्स लर्न करने की कोशिश करते हैं। पॉइंट पॉइंट नंबर फर्स्ट आपने पढ़ा, इंक्रीज इन कंपटीशन। कंपटीशन इंक्रीज हो गया, देन आफ्टर अलोंग विद इंक्रीज इन कंपटीशन कंज्यूमर्स मोर डिमांडिंग हो गए, उनकी मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो गई। फिर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट रैपिडली चेंज होने लगा, इस सबको चेंज को एक्सेप्ट करना आपके लिए कंपल्सरी हो गया। तो पॉइंट आप लिखेंगे नेसेसिटी फॉर चेंज। और जब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है और आपको उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है, तो यानी डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना पड़ेगा। एंड द सिक्स्थ वन, मार्केट ओरिएंटेशन। पहले प्रोड्यूसर्स मार्केट था, जो बनाते थे वही सेल हो जाता था, लेकिन अब वही बनाना पड़ेगा जो कस्टमर को चाहिए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, earlier firms were following selling concept that is produce first and then go to the market। पहले बना लो और फिर मार्केट में जाके सेल कर लो। लेकिन अब अपोजिट हो गया है, अब पहले मार्केट में जाके मार्केट रिसर्च करो, कंज्यूमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिजाइन करो और फिर उसको मार्केट में लाके सेल करो। तो मार्केट ओरिएंटेशन हो गया, यानी मार्केट को आपको ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, बिकॉज नाउ कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। लास्ट पॉइंट, सेकेंड लास्ट पॉइंट, have a look. Loss of budgetary support to public sector। 1991 से पहले क्या होता था, पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस को प्रॉफिट से जज नहीं करते थे। नाइनटीन 1991 से पहले पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस को कभी भी प्रॉफिट से जज नहीं किया जाता था। क्यों? क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो है वो वर्क करता है विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर। तो अब ऐसे में जिस भी पीएसयू को लॉस होता था उसका लॉस गवर्नमेंट के बजट से सैंक्शन कर दिया जाता था और उसके लॉस की वहां से रिकवरी हो जाती थी। बट 1991 में जब प्राइवेटाइजेशन किया गया तो सारी पीएसयूज को ये कहा गया कि अब अगर आप प्रॉफिट अर्न नहीं करते तो आपको भी वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि किसी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज को ट्रीट किया जाता है। सो हैव अ लुक व्हाट इज रिटन ओवर हियर फॉर यू। Prior to 1991, all the losses of public sector were used to be made good by the government by sanctioning special funds from budget। First sentence समझ आ गया होगा। But today, the public sectors have to survive and grow by utilizing their resources efficiently. Otherwise, these enterprises have to face disinvestment। Clear हुआ? अगर ये private sector enterprises के साथ work नहीं कर पाए
और लॉस में चले गए तो इनमें गवर्नमेंट क्या पॉलिसी अडॉप्ट करेगी इनके लिए? डिसइन्वेस्टमेंट, या तो प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देगी एसेट्स या फिर पूरी तरीके से इस एंटरप्राइज को शट डाउन कर देगी। ऑन द होल द पॉलिसीज ऑफ, ये इस पॉइंट का पार्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये जो पैराग्राफ है ये अलग है, ये इस पॉइंट का पार्ट नहीं है। ये नीचे अलग से आएगा पॉइंट, एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल के भी बाद आएगा, ये गलती से यहाँ टाइप हुआ है। On the whole, the policies of LPG have brought positive impacts on Indian business environment and industry. They have become more customer focused and have started giving importance to customer satisfaction. ये आपको लास्ट में लिखना है, ये यहाँ नहीं लिखना है, इस पॉइंट का पार्ट नहीं है, मैंने रिपीट कर दिया है आपके लिए। लास्ट पॉइंट देखिए, आप खुद देखिए, लास्ट पॉइंट के बाद कंक्लूजन नहीं है, तो वो जो ऊपर लिख दिया है ना वो कंक्लूजन है, आप उसको हाईलाइट करके सेपरेट कर लीजिए दैट दिस इज द कंक्लूजन ऑफ इफेक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसी। लास्ट पॉइंट आपको क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। ये कह रहे हैं 1991 के बाद ऐसे चेंजेस आए, इतना ग्लोबल कंपटीशन हमें फेस करना पड़ा कि अब हमें न्यू ट्रेड पॉलिसी में जो एक्सटर्नल ट्रेड गवर्नमेंट ने लिबरल बना दिया, हमें भी उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर हमारे यहाँ की बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर्स एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारी कंट्री चल नहीं पाएगी। तो इंडियन कंपनीज ने भी एक्सपोर्ट बिजनेस को ज्वाइन किया और ज्वाइन करके बहुत सक्सेसफुल भी हुए। बहुत सारी कंपनीज ने अपना टर्नओवर भी इंक्रीज किया एक्सपोर्ट डिवीजन स्टार्ट करके। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं आपको कि रिलायंस कंपनी है, वीडियोकॉन है, एमआरएफ है, बहुत सारी ये कंपनीज है जिन्होंने स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट मार्केट अपना होल्ड कर लिया और एक्सपोर्ट करके अपनी नेशन के लिए फॉरेन करेंसी अर्न करके दी। ये देख लीजिए 8 पॉइंट्स हैं। ये सारे पॉइंट्स क्या है? एलपीजी पॉलिसी का इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट रहा। तो अगर हम इसकी बात करें, कंपटीशन इंक्रीज हो गया, कस्टमर्स की डिमांड भी इंक्रीज हुई, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बहुत जल्दी जल्दी चेंज होने लगा और इस चेंज को अडॉप्ट करना हमारे लिए कंपल्शन हुआ। जब ये कंपल्शन हुआ तो ह्यूमन डेवलपमेंट के स्किल्स भी डेवलप करने जरूरी हो गए। मार्केट ओरिएंटेशन हो गया, यानी अब कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया जाएगा। प्राइवेटाइजेशन होने के बाद पब्लिक सेक्टर के लॉसेस अब गवर्नमेंट ओवरकम नहीं करती और एक्सपोर्ट करना अब हमारे लिए थोड़ा सा जरूरी हो गया। अगर हम मार्केट में टिकना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट करना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ तक आपका जो प्री टर्म है उसमें आएगा। चैप्टर 3 जब आप प्री टर्म का सिलेबस देखेंगे तो आपको मिलेगा द अप टू द इम्पैक्ट ऑफ इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट, इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसीज ऑन इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट। तो यहाँ तक का पार्ट हमें कंप्लीट करना है। ओके, नाउ दोज हु आर इन द क्लास रेज योर हैंड्स कि क्या आपको नेक्स्ट 3 डेज यानी कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे रिवीजन क्लास की नीड होगी, क्योंकि नेक्स्ट वीक से आपके पेपर स्टार्ट है। तब तो हम चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 जितना हमने किया है उसका रिवीजन आगे करते हैं, else we will be just completing the remaining part of chapter 3. Okay, revision is required. चलिए, well and good. तो बस कल आपका ब्रेक है और परसों से हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। परसों की क्लासेस जो रहेंगी, इन दोस क्लासेस व्हाट वी विल बी रिवाइजिंग चैप्टर 1, 2 एंड 3। ठीक है, थर्ड का यहीं तक का पार्ट। अब मैं आपको कुछ केसेस बता रही हूँ, आप उन केसेस को जरूर हाईलाइट करें और उन केसेस को आपको डिस्कस करना है, रीड आउट करके रखना है। बुक ओपन कर लीजिए सभी बच्चे। जो केस स्टडीज आपको अभी बताई जा रही है पेज नंबर पे, वो आप नोट डाउन करते रहिए और वो केसेस आज आपको पढ़ के रखने हैं। जैसे मैं आपको स्कूल में बताती थी कि ये क्वेश्चंस है पर्टिकुलर जो आपको रीड करने हैं, वही चैप्टर 3 के क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रही हूँ। सो हैव अ लुक। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 142, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 142। हम हमारी बुक के लेटेस्ट एडिशन की बात कर रहे हैं। मैं आपको उसमें से ही बता रही हूँ कि कौन से क्वेश्चंस आपको, बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ कौन से क्वेश्चंस नहीं करने, जो आपके अभी पार्ट नहीं है। ठीक है, रिमेनिंग सारे आपका हो चुका है। तो यहाँ पे तो आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप हमने सारे ही पढ़ लिए। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 18 सब कुछ हमारे टॉपिक में कवर हो गया है। ऑलमोस्ट जितना टॉपिक हमने पढ़ा है ना, क्वेश्चन सारे वहीं से आते हैं। फिलअप्स भी हमने सारे डिस्कस कर लिए, ट्रू फॉल्स का भी सारा पोर्शन हो गया है। तो ये आप आराम से सारा सारा पढ़ सकते हैं, यानी ऑल द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ऑल द फिलअप्स एंड ऑल द ट्रू फॉल्स। आगे देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगेन
ऑल द रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आंसर सारा कवर हो गया है हमारा। इसके अंदर आपको कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आपको कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट मिलेंगे, जैसे कि आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 7 and 9. It means 7, 8 and 9 of page number 144 and 145. ये तीन क्वेश्चंस जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके टॉपिक बीच में नहीं आए, थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई करके दिया गया है, तो आपके लिए इसकी रीडिंग काफी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन में। अगेन आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं वो देख लीजिए, ऑलमोस्ट हमने सारा कर लिया। इसका 6th क्वेश्चन हाईलाइट कर लीजिएगा, डिफरेंट है। 6th क्वेश्चन काफी डिफरेंट है, आपको पढ़ना ही है, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आ रखा है ये क्वेश्चन। इसमें भी वी हैव कंप्लीटेड ऑल द पोर्शन, क्योंकि हमने जो किया है क्वेश्चंस वहीं से बन रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपको ये सारे क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं, बस 23 तक लिमिटेड क्वेश्चंस है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। अप टू हॉट्स, हॉट्स का 23rd क्वेश्चन, यहाँ तक आपको सारा का सारा रीड करके रखना है। अगर आपको बाय चांस कोई कंफ्यूजन है, यू कैन कॉल और मैसेज मी। नाउ एनीवन, एनी डाउट?